Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and very good at your places. So, children, I am your computer educator, and from today onwards, we are going to begin our chapters. So, in this class, we are going to start our very first chapter, which is your chapter number 1, and its name is Layers in Photoshop CC. So, बच्चों, इस चैप्टर में हम Adobe Photoshop CC के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. The industry standard for picture editing software is Adobe Photoshop CC. तो बच्चों, ये एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है पिक्चर्स को एडिट करने के लिए. It is sophisticated and powerful. We will find that Photoshop is a fantastic program as we learn to understand its intricacies. Okay, now let's see some features of Adobe Photoshop. So it is basically used to improve the screen display or printing, make adjustments or so children, Adobe Photoshop is used to improve screen display or printing, make adjustment to scan or digital camera photographs. Additionally, it enables us to alter the file format of graphical pictures for usage as web page, email attachments or in printed materials like newsletters and brochures. नेक्स्ट है बच्चों, ये फोटोज एडिट करने के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली दैट वर स्कैन्ड ओके और कैप्चर्ड बाय अ डिजिटल कैमरा, जो कि कैमरा से खींची गई होती है, ठीक है, कैमरा से कैप्चर की गई होती है. ये इनको एडिट करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज होता है. फोटोशॉप टर्न्स इनटू अ डिजिटल डार्क रूम. नेक्स्ट इज फोटोशॉप सीसी रीस्टोर्स ओल्ड और डैमेज फोटोग्राफ्स. ये पुरानी फोटोज को बच्चों रिस्टोर करता है और फिर से ये बच्चों पुरानी फोटोज को, जो ओल्ड इमेजेस होती हैं या फिर डैमेज्ड इमेजेस होती हैं, उसको ये दोबारा रिस्टोर कर लेता है. नेक्स्ट इज ये क्रिएटिव आर्ट वर्क क्रिएट करता है बाय ऑल्टरिंग पिक्चर्स और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. Photoshop turns into a digital playground where users may work with scalable things like text, lines, shapes in addition to painting with pixels. अब हम देखेंगे कि इस पे वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू वर्क विथ पैनल्स. So panel aid in work monitoring and modification. Panels can be docked, stacked or grouped together. In the panel section on the right side of the interface, panels are shown in columns. So बच्चों, जो हमारा Adobe का इंटरफेस होता है उसके राइट साइड पे we can see the panels. Okay. बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप सीसी के पास बच्चों 3 पैनल कॉलम्स होते हैं, ठीक है. On the far right, the new libraries panel has its own column. So in the center of the primary panel column is the panel that we utilize the most. ठीक है, सेंटर पे जो हमारा होता है वो होता है प्राइमरी पैनल कॉलम, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है. एडिशनली बच्चों, there is a supplementary narrow column of panels on the left. एक और बच्चों supplementary narrow column होता है panels का लेफ्ट की तरफ. आगे चलते हैं बच्चों अब. So you can see this is the interface of Adobe Photoshop. Now comes the main panel column. Main panel column बच्चों सेंटर में होता है Photoshop के. इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, पैनल्स होते हैं that are most frequently used, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं. Photoshop बच्चों ओपन होता है 3 विंडोज के साथ. ओपन 3 विंडोज फॉर अस, ये हमारे लिए 3 विंडोज ओपन करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. कलर पैनल जो कि टॉप पे होता है, ठीक है, मेन कॉलम के. दूसरा है प्रॉपर्टीज पैनल जो कि कलर पैनल के नीचे होता है. एडिशनली बच्चों लेयर्स पैनल जो कि होता है बॉटम पे. द नेम ऑफ ईच पैनल इज शोन इन द टैब एट द टॉप ऑफ द पैनल. देन कम्स पैनल ग्रुप्स. You will see that the column contains other panels in addition to the color, properties and layers panels. For instance, there is a swatches option to the right of the color panel. बच्चों जैसे कि swatches option होता है हमारे color panel के right की तरफ. फिर बच्चों एक एडजस्टमेंट टैब होता है that is next to the properties panel. Then we have 2 additional tabs, channels and paths, that are located at the bottom to the right of the layers panel. Adobe wanted to find a way to keep Photoshop's numerous panels from taking up too much screen space. Creating panel groups out of similar panels is the answer. 2 or more separate panels may be included in a panel group. This makes it possible for several panels to occupy the same amount of area. Only one panel in a group can be seen at a time in Photoshop.
ठीक है बच्चों, एक पैनल ही हम देख सकते हैं फोटोशॉप पे एक टाइम पे। एज अ रिजल्ट बच्चों, जो दूसरे पैनल होते हैं और जो पैनल्स होते हैं ग्रुप में, वो कंसील्ड होते हैं बिहाइंड दी ओपन पैनल। ठीक है, जो एक्टिव पैनल होता है बच्चों, इट इज दैट पैनल दैट इज ओपन इन द ग्रुप एट द मोमेंट। ठीक है, जो कि उस मोमेंट पे ओपन हुआ हो। बिकॉज द नेम ऑफ द एक्टिव पैनल इज ब्राइटर देन द अदर्स, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, एक्टिव पैनल का जो बच्चों जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है दैट दिस पैनल इज एक्टिव। नाउ कम स्विचिंग बिटवीन पैनल्स इन अ ग्रुप। अब बच्चों स्विच करने के लिए हमें क्या करना होता है, टैब्स पे क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, लेफ्ट साइड पे जो कलर पैनल है वो ओपन है विद द स्वॉचेस पैनल हाइडिंग इन द बैकग्राउंड, जिसमें स्वॉचेस पैनल पीछे छुपा हुआ है। अब हमें उसे अगर ऑन द राइट द स्वॉचेस टैब इज क्लिक, तो अगर हम राइट पे बच्चों स्वॉचेस को क्लिक करेंगे टैब को, तो ये क्या करेगा, स्वॉचेस पैनल को बच्चों ओपन कर देगा और कलर पैनल को बैकग्राउंड में भेज देगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, अब आता है कोलैप्सिंग एंड एक्सपैंडिंग पैनल ग्रुप्स। A panel group can be temporarily collapsed so that only the tabs along the top of the group are displayed. This frees up more space for panels in other groups. To collapse a panel group, double click on any tab. अब बच्चों कोलैप्स करने के लिए पैनल ग्रुप को डबल क्लिक करना होता है उसके टैब पे। तो ये क्या करता है, कोलैप्स कर देता है उसके पैनल को इन द ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ विच द टैब इज क्लिक्ड ऑन। Here we have double clicked on the swatches tab. ठीक है, अगर हमने सपोज स्वॉचेस टैब पे डबल क्लिक किया तो ये कोलैप्स कर देगा स्वॉचेस पैनल को, और बच्चों जो एडजस्टमेंट पैनल होगा वो उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो दैट ओनली देयर टैब्स आर विजिबल, ताकि उसके टैब सिर्फ हमें दिखे। Notice that the color panel below them has grown taller to fill up the extra space. To expand a group that have been collapsed, to make the panels visible, click once on any tab in the group. अब बच्चों एक ग्रुप को एक्सपैंड करने के लिए जो कि कोलैप्स किया गया था पहले, उस पे हमें क्या करना होगा बच्चों, सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके किसी भी टैब पे। ओके, हियर वी हैव क्लिक्ड वंस ऑन द स्वॉचेस पैनल एंड नाउ द पैनल इज वंस अगेन विजिबल। द कलर पैनल below the group has reverted back to its original smaller size. So just to quickly summarize, double click on the tab. डबल क्लिक करना है आपको बच्चों टैब पे उसको कोलैप्स करने के लिए, और सिंगल क्लिक करना है उसको दोबारा से एक्सपैंड करने के लिए। अब आता है कि कैसे एक पैनल को क्लोज करते हैं। सो बच्चों, कोलैप्सिंग और एक्सपैंडिंग के साथ हमारे पास फोटोशॉप में बच्चों हम उनको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं, विच आर नॉट इन यूज बेसिकली। Okay, so to close a single panel in a group, first click on the panels tab. उसके टैब पे क्लिक करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए। देन वी हैव टू क्लिक इन द मेन्यू आइकन पे जाना है टॉप राइट कॉर्नर पे ऑफ द पैनल, और फिर हमें क्लोज को चूज करना है फ्रॉम द मेन्यू। अब आता है ओपनिंग पैनल्स फ्रॉम द विंडो मेन्यू। All of the Photoshop's panel can be accessed from the window menu in the menu bar along the top of the screen. To reopen a panel after closing it or to open any other panel of Photoshop, click on the window menu. तो बच्चों ये क्या करता है, ये मेन्यू ओपन करता है जिसमें बच्चों हमारे पास कंप्लीट लिस्ट होती है एवरी पैनल अमंग विद अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन। A check mark beside a panel's name means that the panel is currently open. check mark बताता है कि बच्चों जो पैनल है, एक check mark उस पे बना होता है जो कि डिनोट करता है that it is currently active and open. Now to open a panel that is not already open, no check mark beside it. अगर ओपन नहीं है तो उसके साथ में कोई check mark नहीं होगा. So click on its name in the list. अब बच्चों लेयर्स के साथ कैसे वर्क करते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों सीखा है कि आप लर्न दैट अ लिटिल अबाउट लेयर्स। अब बच्चों फोटोशॉप के अंदर लेयर्स होती हैं दैट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द की कंपोनेंट्स जिस पे वर्क किया जाता है ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। So these are used to work on individual parts of an image without affecting the other parts. A Photoshop image consists of multiple layers with each layer containing different objects in the image. तो जब बच्चों हम एक डिजिटल कैमरा फोटो को ओपन करते हैं या फिर एक स्कैन्ड इमेज को ओपन करते हैं फोटोशॉप पे, ये एक सिंगल लेयर की तरह तब एग्जिस्ट करता है जिसको हम बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। इसके साथ साथ हम न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं बच्चों उसके टॉप पे, ठीक है, जैसे जैसे हम उस पर वर्क करते जाते हैं। Now let's understand layers dialog panel. अब बच्चों लेयर्स डायलॉग पैनल जो होता है वो अपीयर होता है बच्चों राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप विंडो पे। लेयर्स डायलॉग बॉक्स पैनल जो होता है बच्चों उसमें ऑप्शंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क।
ओके, सो हियर यू कैन सी इट. फर्स्ट वी हैव द लेयर टैब. ये यूज होता है लेयर्स को मूव करने के लिए. ठीक है, लेयर डायलॉग पैनल को मूव करने के लिए अराउंड दी फोटोशॉप वर्क एरिया. लेयर फिल्टर बच्चों इनेबल करते हैं, अलाउ करते हैं कि हम लेयर्स को हाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट थिंग्स. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स लाइक अ नॉर्मल लेयर, देन एडजस्टमेंट लेयर. वी कैन फिल्टर दी सिमिलर टाइप्स ऑफ लेयर्स विद दिस. फिर आते हैं लेयर मोड मेन्यू. बच्चों इसके पास काफी ऑप्शंस होते हैं जिससे इनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है. ओपेसिटी बच्चों यूज होते हैं ट्रांसपेरेंसी को चेंज करने के लिए ऑफ द सिलेक्टेड लेयर. रेयर बच्चों 0 जो है उसका मतलब है टोटल ट्रांसपेरेंट और 100 का मतलब है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है. फिर आता है बच्चों फिल ओपेसिटी. बच्चों ये एडजस्ट करता है ओपेसिटी के अमाउंट को पिक्सेल्स के. ठीक है, द पिक्सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन the pixels that are present in the image, the opacity helps to adjust them. Okay, but layered styles remain unaffected and remain 100% opaque. Then comes layer eye icon. So बच्चों जब हम क्लिक करते हैं layer eye icon पे तो layer image बच्चों along with the eye icon disappears, वो गायब हो जाती है. ठीक है, फिर हमें उस पर दोबारा क्लिक करना होता है लेयर के आई आइकन पे, जिससे जो इमेज होती है एज वेल एज द आई आइकन वो दोबारा अपीयर होता है. फिर आते हैं लेयर्स पैनल स्टैक. बच्चों सभी जो वर्किंग लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे डिसेबल होते हैं. फिर आता है लिंक. बच्चों ये इनेबल करता है हमें कि हम लिंक कर सकते हैं लेयर्स को विच विल मूव टुगेदर अनलेस अनलिंक्ड. ठीक है, फिर वी हैव लेयर इफेक्ट्स. बच्चों ये इफेक्ट्स होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं. ठीक है, लाइक द शैडो, आउटर ग्लो, जो कि हमारे इमेज लेयर पे अप्लाई होते हैं. फिर वी हैव एड लेयर मास्क. बच्चों ये एक लेयर मास्क ऐड करते हैं हमारे करंटली सिलेक्टेड लेयर पे, जो कि अलाउ करती है बच्चों हमें कि हम उस पर पेंट कर सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द लेयर विदाउट डैमेजिंग द ओरिजिनल इमेज. ठीक है, ओरिजिनल इमेज वाइज डैमेज नहीं होती. फिर वी हैव एड एडजस्टमेंट लेयर. बच्चों ये हमें अलाउ करता है कि हम बेसिक आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं लाइक इनको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को, सैचुरेशन को, फोटो फिल्टर को, कलर बैलेंस को. देन वी हैव लेयर्स ग्रुप. ये बच्चों एक न्यू लेयर क्रिएट करता है, एक न्यू लेयर ग्रुप क्रिएट करता है ताकि हम उसमें लेयर्स को ऐड कर सकें. ठीक है, नाउ वी हैव क्रिएट न्यू लेयर. इससे बच्चों एक न्यू लेयर क्रिएट होती है. डिलीट लेयर से बच्चों एक एक्टिव लेयर या सिलेक्टेड लेयर डिलीट होती है. नाउ लेट्स सी सम लेयर बेसिक्स. टू वर्क विद लेयर्स इन द लेयर्स पैनल, first we drag layer up or down in the layers panel to change the order of the layered object in the image. Then बच्चों हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर पे. ठीक है, इस आइकन पे, जिससे हमारी जो लेयर पैनल होती है एक न्यू लेयर बनाती है. ठीक है, दिस लेयर इज ट्रांसपेरेंट अंटिल समथिंग इज एडेड टू इट. ये ट्रांसपेरेंट रहती है जब तक इसमें हम कुछ ऐड ना करें. अब बच्चों लेयर को नेम करने के लिए उसे डबल क्लिक करना होता है. ठीक है, करंट लेयर नेम पे उसके डबल क्लिक करना होता है और फिर हमें उसे न्यू नेम टाइप करना होता है और फिर एंटर की को प्रेस करना होता है. अब बच्चों लेयर की ओपेसिटी को चेंज करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं पहले लेयर को लेयर पैनल में से और फिर बच्चों ड्रैग करते हैं ओपेसिटी स्लाइडर को दैट इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द लेयर्स पैनल टू मेक द लेयर मोर और लेस ट्रांसपेरेंट. अब आता है बच्चों रीसाइजिंग अ लेयर. तो बच्चों लेयर्स पैनल में वी हैव टू सिलेक्ट वन और मोर लेयर्स दैट कंटेन इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स टू रीसाइज. ओके, so for that you go to edit then free transform. तो एक ट्रांसफॉर्म बॉर्डर अपीयर होता है बच्चों all on all the content on the selected layer. फिर हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं बच्चों डिस्टोरिंग द कंटेंट, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो डिस्टोर नहीं होता. और फिर हम ड्रैग करते हैं बच्चों कॉर्नर्स को और एजेस को until the desired size is obtained. फिर बच्चों इसको हम ड्रैग करते हैं इनसाइड द ट्रांसफॉर्म बॉर्डर टू मूव द कंटेंट अराउंड द इमेज. Drag outside the transform border to rotate the content. Next is हम क्लिक करते हैं बच्चों चेक मार्क पे in the options bar and press enter key to finalize the change. अब आता है बच्चों unlock the background layer. Because the background layer is locked, it can't be moved. बच्चों background layer लॉक होता है, इसकी वजह से बच्चों वो मूव नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, window or rearranged in the layers panel and some editing functions won't work on it. अब बच्चों बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करने के लिए हम उस लॉक आइकन पे क्लिक करते हैं जो कि लेयर नेम के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है. अब आता है कि हम इमेज की क्वालिटी को कैसे एडजस्ट करते हैं. नाउ टू एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वी गो टू द मेन्यू बार एंड सिलेक्ट इमेज, देन एडजस्टमेंट, देन ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट. फिर हम बच्चों ब्राइटनेस स्लाइडर के थ्रू वी चेंज द ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज.
ठीक है, फिर हम एडजस्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को टू इंक्रीज और डिक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट। फिर हम बच्चों ओके पे क्लिक करते हैं और जो एडजस्टमेंट होती है वो हमारे लेयर पे हो जाती है। तो इस पिक्चर के थ्रू बच्चों यू कैन ऑल्सो फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन सी व्हाट विल बी what we should do. Okay, now we have to follow the steps to adjust the color vibrance. So मेन्यू बार के अंदर बच्चों इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर एडजस्टमेंट को, फिर वाइब्रेंस को। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बाय एडजस्टिंग द वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन स्लाइडर्स। जो वाइब्रेंस स्लाइडर्स इफेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं कलर्स की। ठीक है, इनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है ऑन म्यूटेड कलर्स इन दी इमेज। ठीक है बच्चों, जो सैचुरेशन स्लाइडर होता है वो कलर इंटेंसिटी बढ़ाता है एक इमेज की। ठीक है, कलर इंटेंसिटी बढ़ाता है बच्चों कलर्स की दैट आर द पार्ट ऑफ दैट इमेज। ओके, फिर उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है जब आपका काम हो जाए। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू एडजस्ट द ह्यू एंड सैचुरेशन। तो बच्चों मेन्यू बार के अंदर आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर एडजस्टमेंट पे जाना है और फिर ह्यू सैचुरेशन पे जाना है। Experiment by adjusting the hue, saturation, lightness sliders. The changes will affect all the colors in the image. The hue slider changes the colors in an image. ठीक है, hue slider से बच्चों कलर चेंज होते हैं। Saturation slider बच्चों इंटेंसिटी ऑफ कलर्स को इफेक्ट करता है और lightness slider बच्चों ब्राइटनेस ऑफ कलर्स को इफेक्ट करता है। Now let's move on. Next is to affect only a specific color. सिर्फ एक कलर को अफेक्ट करने के लिए बच्चों with these sliders we first go to the drop down menu at the top left of the hue saturation dialog box और वहां पे आपको कलर चूज करना है, कलर रेंज चूज करना है लाइक येलोज। देन बच्चों आपको एडजस्ट करना है ह्यू एंड सैचुरेशन और लाइटनेस स्लाइडर। ये चेंजेस बच्चों आप इफेक्ट करेंगे बच्चों द सिलेक्टेड कलर रेंज wherever the color appears in the image। देन आपको बच्चों ओके बटन पे क्लिक करना है। अब बच्चों हाउ टू रीटच इमेजेस। इमेजेस को दोबारा से हम कैसे एडिट करते हैं, लेट्स सी। Enhancing and retouching photos in Photoshop is an effective way to work with. There are many tips, tricks, techniques for improving things like skin tone, imperfection। तो बच्चों इसके थ्रू, फोटोशॉप के थ्रू हम एक इमेज का स्किन टोन बच्चों चेंज कर सकते हैं, imperfections बच्चों हम रिमूव कर सकते हैं और एनहांस कर देते हैं फोटो की सब्जेक्ट की, जो फोटो में सब्जेक्ट है बच्चों उनके फीचर्स को ड्यूरिंग डिजाइन। लेट्स सी रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों हम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम एन इमेज। ओके, सो लेट्स सी लेयर पैनल पे यू हैव टू सिलेक्ट द लेयर दैट कंटेन्स द स्पॉट्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टू रिमूव। देन बच्चों टूल बॉक्स के अंदर आप सिलेक्ट करोगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। फिर ऑप्शन बार्स के अंदर बच्चों आप एडजस्ट करोगे साइज को और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को टू फिट द आइटम टू रिमूव। ओके, आफ्टर दैट बच्चों आप क्लिक करोगे ऑन अ स्पॉट और ड्रैग करोगे ओवर एन ऑब्जेक्ट टू रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो हाउ इट इज रिमूव्ड। नाउ वी विल फॉलो दीज स्टेप्स टू रिमूव अ लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट रिमूव करवाना हो तो आप कैसे करोगे। तो बच्चों अगेन लेयर पैनल के अंदर आप लेयर को सिलेक्ट करोगे दैट कंटेन्स अ लार्ज ऑब्जेक्ट और अ पर्सन टू रिमूव। आफ्टर दैट बच्चों यू विल यूज अ सिलेक्शन टूल टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आपको ये मेक श्योर करना है कि to include a little of the background all the way around the object। आपको मेक श्योर करना है बच्चों कि आपको अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा इंक्लूड करना है ऑब्जेक्ट के अराउंड। ठीक है, फिर बच्चों मेन्यू बार में जाना है आपको और वहां पे जाके चूज करना है एडिट को। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे फिल ऑप्शन। फिर बच्चों फिल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, फिल डायलॉग बॉक्स में आप चूज करोगे कंटेंट अवेयर को इन द कंटेंट्स मेन्यू और फिर बच्चों आप क्लिक कर दोगे ओके। जो सिलेक्शन होगी बच्चों वो आपके कंटेंट के अंदर फिल हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चों सिलेक्शन होगा वो आपके कंटेंट के साथ फिल हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके बैकग्राउंड से मैच करता होगा। ठीक है, और जो अनवांटेड कंटेंट था वो रिमूव हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा फ्रॉम द व्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट और शेप्स ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट। सो बच्चों टूल बॉक्स के अंदर आप सिलेक्ट करोगे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को। फिर ऑप्शंस बार के अंदर आप चूज करोगे एक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर और अदर ऑप्शंस फॉर योर टेक्स्ट। ठीक है,
तो आप ये सभी चीजों को सेट कर लोगे कि कितना फॉन्ट चाहिए आपको अपने टेक्स्ट का, क्या साइज होना चाहिए फॉन्ट साइज, फिर कलर क्या होना चाहिए आपका टेक्स्ट का, ठीक है। फिर बच्चों यू विल क्लिक ऑन द कैनवस एंड देन यू विल एंटर अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। A paragraph of text can also be created by dragging out a text box and then typing inside the box, ठीक है। तो फिर बच्चों क्या होगा, आपको कैनवस पे जाके क्लिक करना है और सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट आपको टाइप करना है, ठीक है, जो भी आप टाइप करना चाहते हो। फिर बच्चों क्या होगा, एक पैराग्राफ आएगा आपके सामने टेक्स्ट का, ठीक है। तो बच्चों सिंगल लाइन के अलावा आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो टेक्स्ट का, ठीक है, जो कि आप क्रिएट कर सकते हो बाय ड्रैगिंग आउट अ टेक्स्ट बॉक्स। सीधा आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके कैनवस पे ला सकते हो और उसके अंदर टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्लिक करना है चेक मार्क पे इन द ऑप्शंस बार टू एक्सेप्ट द टेक्स्ट और फिर आप टेक्स्ट मोड को एग्जिट कर दोगे। ये ऑटोमेटिकली बच्चों एक न्यू एडिटेबल टाइप लेयर बना देगा लेयर्स पैनल में। फिर आपको क्या करना है, मूव टूल का यूज करना है टेक्स्ट को मूव करने के लिए इनटू द पोजीशन इन द इमेज। देन बच्चों मूव टूल के बाद आप इमेज को सेव करोगे इन द फोटोशॉप और यूज करोगे .psd फॉर्मेट टू रिटेन द एडिटेबल टाइप लेयर्स फॉर फ्यूचर एडिटिंग, ठीक है। इससे बच्चों आपकी जो लेयर्स होती है वो एडिटेबल होती है, मतलब आप फ्यूचर में अगर दोबारा कुछ चेंजेस करना चाहते हो यू कैन डू दैट, ओके। Now children, we can follow these steps to edit the text. So to edit text on a type layer, first you have to select the type layer in the layers panel and select the horizontal or vertical type tool in the toolbox. Then बच्चों आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा to any of the settings in the option bar. अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे जैसे कि फॉन्ट या फिर टेक्स्ट कलर को, ओके। तो जब बच्चों एडिटिंग आपकी फिनिश हो जाए आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है इन दी ऑप्शंस बार, ओके। नाउ बच्चों मूविंग ऑन, वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ शेप। अब बच्चों टूल बॉक्स के अंदर आप क्लिक करके होल्ड करोगे बच्चों रेक्टेंगल टूल को टू व्यू ऑल द शेप टूल्स, ठीक है। होल्ड करने से आपको सारे टूल्स दिखेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा डिजायर टूल को फॉर द शेप टू ड्रॉ। फिर बच्चों ऑप्शंस बार के अंदर आप फिल कलर को चूज करोगे और अदर ऑप्शंस को चूज करोगे फॉर योर शेप, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो बाद में भी। अब फिर बच्चों आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे टू अवॉइड द डिस्टॉर्टिंग द शेप, ठीक है। इससे आपकी जो शेप है वो खराब नहीं होगी, ओके। ड्रैग इन एन इमेज टू क्रिएट एन एडिटेबल शेप, ठीक है। ड्रैग करने से फिर आप क्या करोगे, ड्रैग करके उसको कैनवस पे ले आओगे और वो एडिटेबल होगा, ठीक है। आप उसको चेंज कर सकते हो, उसका लाइक थिकनेस, ठीक है, उसके बाद कलर, वो सब आप चीजें चेंज कर सकते हो। सो इन द इमेजेस यू कैन सी द different options, okay. This automatically creates a new shape layer in the layers panel. ड्रैग करके लाने से बच्चों एक ऑटोमेटिकली आपका न्यू पैनल लेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप मूव टूल का यूज करोगे टू मूव द शेप, ठीक है। मूव टूल से आप अपने शेप को पोजीशन दे सकते हो इन द इमेज, अपने अकॉर्डिंग आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्केल ट्रांसफॉर्म और रोटेट द शेप विदाउट हार्मिंग इट्स इमेज क्वालिटी बाय चूजिंग एडिट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, स्केल और रोटेट करने के लिए इमेज को आप क्या करोगे, एडिट पे जाओगे, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म या फिर कंट्रोल T को प्रेस करोगे। अब बच्चों कलर चेंज करने के लिए शेप के आप जाओगे लेयर्स पैनल पे और वहां पे जाके डिजायर्ड शेप लेयर को चूज करोगे, ठीक है। To change and double click the thumbnail on the layer to open color picker. Okay. थर्ड चैप्टर पता नहीं क्यों नहीं आया। On clicking colors in the color picker, a live preview of the selected color will be appear on the shape. तो बच्चों कलर पिकर की हेल्प से जब आप कोई भी कलर पे जाके क्लिक करोगे तो पहले आपके सामने एक रिव्यू आएगा कि कौन सा कलर आपने पिक करा है। इसके बाद आप ओके क्लिक कर दोगे तो अप्लाई द न्यू कलर टू द शेप। क्लियर? Now we can follow these steps to add a custom shape. So in the toolbox, click and hold the rectangle tool. Rectangle tool को hold करके रखना है, क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है custom shape tool को। फिर ऑप्शन बार्स के अंदर आप क्लिक करोगे डाउन फेसिंग एरो को टू द राइट। फिर बच्चों पर व्यू ऑल द कस्टम शेप्स दैट कम विद द फोटोशॉप, आपको गियर आइकन पे क्लिक करना है राइट साइड पे, ठीक है, और चूज करना है ऑल फ्रॉम द मेन्यू। After that you will click OK in the message that ये पूरा नहीं हुआ मैसेज अपीयर होगा, आपको ओके क्लिक करना है। देन बच्चों आप क्लिक करोगे बॉटम राइट कॉर्नर पे ऑफ द शेप पिकर और आप फिर उसको ड्रैग करोगे टू सी ऑल योर शेप्स। सो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप बच्चों आपको फोटोशॉप सीसी अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, जो जो फीचर्स हमने पढ़े आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स पे आप उसको ट्राई करोगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।